नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, I'm sorry, because of some internet issue, we cannot connect early, so we lost some time. But I think so you did utilize the time for revision. It's always a privilege and a blessing for me to be in your association. I always look forward for it. So when Kostabu told me that he is not available, so I said I immediately agreed. So we also had some little retreat here. तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों का संग, मैं कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता आपको, आप लोगों का संग लेने का। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो एटलीस्ट आई कैन बी विद ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। तो इसीलिए मैं अग्री किया पार्ट इसके लिए। पर anyway, अगला चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 3 भगवद गीता। एंड आई थिंक सो ऑल 4 क्वेश्चंस आर आंसर्ड। आई पर्सनली अप्रिशिएट ओजस्वी कृष्ण प्रभु फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनिंग। मुझे काफी चीजें क्लियर नहीं थी, मुझे तब क्लियर हो गई मुझसे सुनने के बाद। तो he can be a very good teacher in future. He learns nicely and presents in a similar way. Right now, he is also teaching chess. Okay. Very nice. So, anyways, so coming back to our main point of discussion of chapter 3 of Bhagavad Gita, which is Karma Yoga. And specifically in today's discussion, we'll try to cover. There are some few sections in this chapter which I'll just share. What are the sections in this chapter? This chapter basically is divided into around around 5 parts. There are 5 parts in this entire chapter. So the first chapter in the chapter 3, which is called as Karma Yoga, section 1 is text number 1 and 2, that is 3.1, 3.2. So here Krishna gets a question, Arjun gets a question again. आवाज गेला प्रभूजी, तुमचा आवाज गेलाय, आता आलाय. आवाज येत नाहीये. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम. मिनिट थांबा, तुमचा आवाज येत नाहीये प्रभूजी. ऑनलाइन येतोय प्रभू. बोलतो कुठे गेलाय? ऑनलाइन येतोय हरी बोल. ऑनलाइन डिवोटीज आर एबल टू हियर. यस. नो आवाज कमिंग. वेटिंग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. येतोय प्रभू. येतोय, ठीक है. So basically, chapter number 3, it has 5 parts as I mentioned. The first part is text number 3.1 and 3.2. So this section talks about renunciation or work. Arjun gets a question, भाई आप एक चीज बोलो, आप बोल रहे renunciation करो, आप भी बोल रहे work भी करो, तो I am getting confused. It's like equivocal for me. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज बोलो क्या करना है, renunciation करना है या work करना है ना? तो section 1 talks about that. 3.1, 3.2. 3.3 से लेके 3.9 it talks about निष्काम कर्म योग. It is निष्काम कर्म योग where how work combined with knowledge and detachment should be practiced. आवाज आ रहा है ना? यस प्रभू, जाते हैं तो. Yes. Also, one Krishna tells that how one has to offer the fruit of work for the satisfaction of Krishna, for his satisfaction. That's why Nishkam Karma Yoga allows the living entity who is very active to purify through detached activities. So that is that will be 3.3 से लेके 3.9 तक निष्काम कर्म योगा. फिर 3.10 से लेके 16 तक it talks about from कर्मकांड to कर्म योग. कैसे उसको, कोई व्यक्ति कर्मकांडी है, वो कर्मकांड के स्तर से कैसे कर्मयोगी बन पाएगा. So if one cannot perform detached dutiful work, it is better to follow some karma kanda section of Vedas. Krishna tells here.
बट डू इट फॉर कृष्णा's प्लेजर, कृष्ण के प्लेजर के लिए करो। तो ऐसा करने से कर्म कांड से लेके कर्म योग तो व्यक्ति आ सकता है। तो दैट इज 3.10 से 16। देन 3.17 से 35 तक इट टॉक्स अबाउट निष्काम कर्म टू सेट करेक्ट एग्जाम्पल, ब्यूटिफुली एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट that leads to that helps for setting a correct example for others who are less advanced। तो इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में एग्जाम्पल सेट करना बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण बोलते कि भाई मैं भी एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, जनक महाराज और ग्रेट सोल सारे महाजन वो भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो इसलिए वी डू आवर एक्टिविटी जस्ट फॉर सेटिंग द एग्जाम्पल। अगर मैंने एक्टिविटी करना छोड़ दिया तो पूरा दुनिया अपना एक्टिविटी करना छोड़ देगा। That is section 4 from निष्काम कर्म to setting the correct example, 3.17 से 35 तक। The last part of the chapter 3.36 से लेके 43 तक Krishna talks about beware, he talks about lust and anger, how these two are the very dangerous enemies. They can foil one's performance of duty, they can lead to sin, and one has to regulate his senses and strengthen his intelligence to control this lust। तो ये कृष्ण बोलेंगे आखिरी सेक्शन में। अभी अब आपको याद होगा भगवद गीता 2.49 जो श्लोक था पहले के सेकंड चैप्टर का, वेर कृष्ण टॉक्स अबाउट दूरेन ही अवरम। याद है ये वर्ड दूरेन ही अवरम? भूल गए? 2.49 सेकंड चैप्टर 49th वर्स। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपण फल हेतव। दूरेण हमने डिस्कस किया था ना, दूरेण मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कीप अवे द एबोमिनल एक्टिविटी एट ए डिस्टेंस, उसको दूर रखो, दूरेण। और कैसे दूर रखो कृष्ण यहां पे बोल रहे हैं? बाय डिवोशनल सर्विस, बाय बुद्धि योगा। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? तो कृष्ण इज सेइंग, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे 2.49 का, ओ धनंजय प्लीज कीप ऑल अबोमिनल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस। हालांकि प्रोपा कृष्णा जो वर्ड यूज कर रहे बुद्धि योगात यूज कर रहे, बुद्धि योगात, है ना? तो अर्जुन को क्या लगा अभी इसमें ये सुनने के बाद कि उसको लगा बुद्धि योग या फिर बुद्धि का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। So by using his intelligence, he should avoid all abominable activities and thus not fight। ऐसा अर्जुन ने ऐसा समझ लिया, ऐसा उसने इंटरप्रेट किया उस चीज को। पर फिर वो बोल रहे भाई कृष्णा आप बोल रहे कि दूरे ना, पाप को दूर रखो, ये सारे गलत कर्म को, अवरम कर्म को दूर रखो। आप ही बोल रहे बुद्धि का इस्तेमाल करके, पर आप ही बोल रहे युद्ध करो। आपको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अर्जुन को डाउट क्यों आ रहा है? Why अर्जुन इज गेटिंग दिस क्वेश्चन इन थर्ड चैप्टर कि भाई वर्क करना है, रिलाइजेशन करना है, ऐसा क्यों आ रहा है इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज 2.49 में कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि भाई दूरेण ही अवरम कर्म, ये सारे पाप कर्मों को दूर रखा करो। और उसके कृष्ण ये भी बोल रहे तुम फाइट भी करो। तो ये फाइट, अर्जुन को क्या लग रहा है? फाइट इज अ सिंफुल एक्टिविटी, इज एबोमिनल एक्टिविटी, इसे फाइट नहीं करना चाहिए। पर कृष्णा फाइट करो भी बोल रहे हैं और एबोमिनल एक्टिविटी भी मत करो बोल रहे हैं, तो ऐसा कैसा? तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन इसमें आया है कि फाइट करना है कि छोड़ देना है, रिलाइजेशन करना है कि वर्क करना है ना? तो अर्जुन के हिसाब से रिलाइजेशन मतलब ज्ञान एंड वर्क आर इनकम्पैटिबल। ये दोनों एक साथ जा नहीं सकते, अलग अलग चीज है पूरी तरह से। इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई ही बिगिन द चैप्टर, थर्ड चैप्टर, बाय आस्किंग द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहे अर्जुन यहाँ पे? चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 1, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। तो he saying, Arjuna said, "O Janardhan, O Keshav, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruity work." आपको समझ में अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहे, समझ रहे हैं ना? Why Arjuna is saying intelligence is better? Because 2.49 में कृष्ण बोल रहे हैं दूरेण, दूर रखो पाप को बुद्धि के माध्यम से। पर वही कृष्ण बोल रहे हुए तुम फाइट भी करो।
तो भैया ये तो हो गया पूरा कंफ्यूज इसमें। तो if you see, Prabhupada writes in purport, the personality of Godhead, Shri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter. अभी हालांकि देखिए और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इससे पहले आगे जाए हम लोग। सेकेंड चैप्टर जो है ना, उसका नाम क्या है? सांख्य योग, और एक अर्जुन विषाद, ए भैया अर्जुन विषाद नहीं, योग चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर एंड सांख्य योग प्रभुजी। सांख्य नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद ने क्या नाम दिया है? Contents of the Gita summary. हाँ, है ना। तो हालांकि कृष्णा का प्लानिंग क्या था पता है क्या आपको? कृष्ण ने प्लान किया भाई मैं बस ना ये सेकंड चैप्टर तक एंड कर दूंगा सारा। सेकंड चैप्टर जब चालू हो जाएगा ना तो मैं उसको एंड कर दूंगा, ऐसा कृष्णा ने प्लान किया था। इसलिए उसका नाम दिया ना कि कंटेंट ऑफ गीता समराइज, मतलब वॉट एवर इज द एसेंस ऑफ एंटायर गीता कृष्णा स्पोक इन सेकंड चैप्टर ऑफ गीता, करेक्ट। पर फिर जैसे कृष्ण ने बोल दिया, अर्जुन कृष्ण ने बोला दूरेण वाला क्वेश्चन जैसे आ जाता है तुरंत फिर अर्जुन में क्वेश्चन आ गया कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फाइट करना है कि मुझे बुद्धि योगा का फॉलो करना है। और खास करके अर्जुन यूजेस द वर्ड केशव। जब हमने श्लोक पढ़ा उसमें क्या वर्ड आया? केशव। केशव कृष्णा का नाम है। केशव द्रीता नर हरि रूप, या फिर दशावतार सूत्र में गाते हैं हम लोग केशव केशव द्रीता, है ना। तो यहाँ पे केशव का अर्थ क्या है? क मतलब ब्रह्मा। गुरुजी तुमचा 1 मिनिट थांबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आला आला आला। तो इसमें जो केशव शब्द यूज किया है, तो केशव का मतलब क्या है? केशव का दो, हाँ आवाज आ रहा है? आला आला। हाँ, तो केशव शब्द का अर्थ क्या है इसमें? क का मतलब है ब्रह्मा और ईश मतलब है शिव। केशव का मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मा और शिव जी का कंट्रोलर है, केशव। इसलिए वर्ड केशव यूज किया है, हाँ। दैट्स व्हाई सेइंग। अब देखेंगे और एक चीज में, और एक इसका एप्लीकेशन आचार्य लिखते हैं कमेंट्री में कि केशव ही वर्ड यूज क्यों किया है। इसमें मैंने बोला कि के क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव, कंट्रोलर ब्रह्मा एंड शिव, है ना। जैसे फाइट करना इज लाइक वन ऑफ द रोल्स ऑफ शिवा, और बुद्धि योगा इंटेलिजेंस इज अ रोल ऑफ ब्रह्मा। तो ये कंफ्यूज हो गया है अर्जुन की भाई आप मैं बुद्धि योग करना है या फाइट करना है? थोड़ा क्लियरली बोलो, प्लीज कंट्रोल मी, प्लीज गाइड मी। ये थॉट से ही अर्जुन यहाँ पे वर्ड यूज क्या कर रहे? केशव। दैट्स द रीजन यूजिंग द वर्ड केशव। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा सा समरी करके पूरे चैप्टर का, देन विल कम बैक टू फर्स्ट श्लोक अगेन। सो नाउ अर्जुन is reiterating his relationship with the disciple in this chapter. आगे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, because Arjun is saying here, it talks about his submissiveness. भक्ति में प्रगति करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक क्वालिटी है, one of the qualities that is submissiveness. And that's why if you see this in the text number 2, टेक्स्ट नंबर 2 में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर इक्विबल इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर प्लीज टेल मी डिसिसिवली विच विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी। ये एक शिष्य का भाषा है, एक शिष्य इस तरह से बात करता है ना। बेसिक इसमें क्या दिखा रहा है? अर्जुन इज शोइंग हिज सबमिसिवनेस टू कृष्णा, टू अंडरस्टैंड द नॉलेज, टू गेट द क्लैरिटी, है ना। यस, है ना। तो ऐसा कृष्णा wants to offer that clarity to Arjun now. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे प्रभुपाद के समय की बात है, एक बार डिवोटीज को लगा भाई कि रोज रोज वही वही हम फॉलो कर रहे हैं, रोज वही आरती, रोज गोविंदाबादी बोल रहे, थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए। तो उन्होंने डीटी वर्शिप का चेंज कर दिया, उन्होंने रोटेटिंग ऑल्टर ऑल्टर बनाया, है ना। रोटेटिंग ऑल्टर मतलब क्या? एक सामने राधा कृष्ण और पीछे गौर निताई। तो प्रभुपाद आए वहां पे, प्रभुपाद ने प्रणाम किया, तब जब प्रणाम करते हुए राधा कृष्ण थे, जैसे प्रणाम करके उठे तो प्रभुपाद ने देखा गौर निताई आगे, तो प्रभुपाद ये क्या हो गया, है ना।
तो उन्होंने बोला प्रभुपाद हमने ऐसा सोचा कि रोलिंग ऑल्टर, रोटेटिंग ऑल्टर बनाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि वन शुड नॉट डू एनी इनोवेशन विदाउट कंसल्टेशन, वन हैज टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद कंसल्टेशन। ये प्रिंसिपल प्रभुपाद ने तब स्टैब्लिश किया वहां पे। क्या हो गया? आवाज गया था आपका, आ गया फिर से। ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है बार बार? ये तो लास्ट टाइम में ऑनलाइन में एक बार प्रॉब्लम आया था ऐसा। टेक्निकल इश्यू आहे ब्रोजी इधर, उधर क्या पिन खराब आहे यांची BBRV वाल्यांची. पिन मारा त्यांना मग? ठीक है, एनीवेज, तो मेरा पॉइंट है कि दैट्स व्हाई कृष्णा थ्रू अर्जुन इज पुटिंग इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सबमिसिवनेस। हमको भी अपने जीवन में हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के प्रति सबमिसिव होना चाहिए, ये यहाँ पे कृष्णा दिखा रहे हैं। और हर एक चीज कंसल्टेशन में करेंगे तो हम लोग थोड़ा सेफ रहेंगे। एज वी गो अहेड इन दिस चैप्टर, कृष्णा टॉक्स अबाउट यज्ञ, कंसेप्ट ऑफ यज्ञ, वर्क डन एज सैक्रिफाइस टू विष्णु। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करने का भगवत गीता के 3rd चैप्टर के हिसाब से अनुमति दिया गया है। तो भगवान श्री विष्णु, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है? कृष्ण वो आवाज नहीं आ रहा है अभी भी? आवाज नहीं आ रहा है क्या? हरी बोल। हा गेलता ब्रोजी, आता आला परत. मैं एक सजेस्ट करूँ कि आप लोगों को किसी के मोबाइल में कनेक्ट करो और उसको माइक लगा दो। गोमन ब्रोजीचा फॉल्स इगो मध्ये येतोय. परत झालं तर करू म्हणतात. ठीक है, सो बिकॉज विष्णु प्रोवाइड्स एवरीथिंग, दैट्स व्हाई one has to offer the things as a respect back to विष्णु। जैसे when we pay tax to government, so government provides facilities to us. Similarly, when one does yajna for the pleasure of Lord Vishnu, everything what is required for is bestowed upon us। ये भी इसके ऊपर चर्चा होगा, चैप्टर में डिस्कस होगा। हालांकि आजकल हम लोग इतना अवेयर नहीं है बात से लेके कि भाई रेन, फूड और एयर, है ना, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से कैसे पर्जन्य आ सकता है, बारिश आ सकता है, इसके हमको पता नहीं। बोला ठीक है भाई, चल रहा है सिस्टम तो चल रहा है, बारिश आ रहा है, फूड मिल रहा है, हवा मिल रहा है, तो देयर इज समवन हु इज सप्लाइंग अस टू दैट। जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वी आर नॉट अवेयर दैट वी हैव टू पे टैक्स बैक टू इवन द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बोला है ये चैप्टर, ये इसमें, कि एक्चुअली कलयुग वन हैज टू डू सिंपल यज्ञ, दैट इज संकीर्तन यज्ञ, है ना। आप लोग सब संकीर्तन वॉरियर्स है, संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेम संकीर्तन के आप प्रोपाउंडर्स और फॉलोअर्स और प्रोपोगेटर्स है। तो वो प्रेम, हमारा जो हरिनाम संकीर्तन है, जो कलयुग का युग धर्म है, उसको हमको फॉलो करना है। So as we go in the chapter ahead, in the 25th verse, कृष्ण बोलेंगे भाई करता कौन है, हु इज द डूअर, है ना, डूअर कौन है? वो मटेरियल नेचर है, वो कृष्ण है, कि जीव है? कौन डूअर है? तो ये 3 प्रकार के जो डूअर्स है, क्योंकि जीव जो है वो डिजायर करता है, परमात्मा जो सैंक्शन करता है, डायरेक्ट करता है, और जो मटेरियल नेचर है वो फैसिलिटेट करता है ना। जैसे एग्जांपल दिया था, एक प्रिंटर का एग्जांपल देते हैं प्रॉपर। प्रिंटर में क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो डिजायर करता है कि भाई मुझे प्रिंट आउट चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति है जो उसको सैंक्शन करता है कि भाई ठीक है, ये आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और कोई व्यक्ति है जो उसको फैसिलिटेट करता है, पेपर लाएगा, इंक लाएगा, सब कुछ लाएगा, है ना। तो इस तरह से जो जीव होता है डिजायर करेगा, परमात्मा सैंक्शन करेगा, और मटेरियल नेचर उसको फैसिलिटेट करेगा। ये चर्चा इसमें चलेगा चैप्टर, एज चैप्टर गोज अहेड। So basically the jiva, he goes through the परमात्मा to access the material nature। तो जीव जो है मटेरियल नेचर को एक्सेस कैसे करता है? परमात्मा के सैंक्शन के बाद एक्सेस कर सकता है। उसके बाद फिर भाई अर्जुन को लगता है कि ठीक है, अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि यार भाई मेरे को बहुत करने की इच्छा है, लेकिन कभी कुछ चीज कर नहीं पाता हूं मैं, क्या है वो चीज जो मुझे फोर्स करता है?
What stops us from executing Krishna consciousness? Why get deviate from Krishna consciousness? कैसे कोई व्यक्ति डिविएट हो जाता है ये पाथ से? तो कृष्ण बोलते हैं इट इज लस्ट ओनली, सिर्फ काम, काम ये शुक्रोदेश हमने इसमें पहले पढ़ा। तो काम ही एक कारण है जो व्यक्ति को डिविएट कर देता है। इसलिए हमारे जो एक द्रविड़ प्रभु है वो उन्होंने एक अच्छा पोयम लिखा है। पोयम में लिखते हैं, rebellious living entities forgot his true identity out of sheer stupidity surrender to cupidity। ये उन्होंने वाक्य लिखा है क्यूपिड के कारण। सो क्यूपिड मेक्स अस स्टूपिड। राधेश्याम को एक सेमिनार है, हाउ कैन क्यूपिड मेक्स वन स्टूपिड। आवाज इतनी है। हरे कृष्णा। कृष्ण बोला गुरुजी. तुझा आवाज फार कमी झाला आता. दादा गोकुलांदा, तुझा आवाज फार कमी होतोय मला. कट झाला माझा आवाज. कट नाही झाला, पण थोडासा असं वाटतं तो विहिरीत बोलतो. आम्हाला तुमचा आवाज आता येतोय चांगला. अजून पण क्लिअर येत नाही माझा आवाज. नाही येत तुझा आवाज काय आता. त्या बीव्हीआरच्या स्टाफला बोलवा नाही का, त्यांना दाखवता येईल असा प्रॉब्लेम येतोय. सारखा प्रॉब्लेम होतोय, अनेक वर्षापासून प्रॉब्लेम होतोय. ठीक आहे ठीक आहे. वर्षांपासून प्रॉब्लेम चालू आहे ना. येस येस. म्हटले आता तरी त्याला काहीतरी काम करा, आता आपण उठाव करावा लागेल आपला 1857चा उठाव. तुझा आवाज येत नाही, काहीच राहता गुलांदा, काहीच आवाज येत नाही. अरे बोल. 2 मिनिटं होल्ड करा. आम्ही प्रोजिनला बोल येते, स्टाफ आणि प्रोजिनला क्लिक करताय. मी ठीक आहे, मी ओके. मला सांगा हा हा. बाकी काय नाही. पण पाणी प्यायचं असेल, वॉशरूम असेल, जाऊन या. रोजी तुम्ही चालू करू शकता. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आवाज येतोय का माझा? येस रोजी.
तुमचा व्हिडिओ ऑन कराल? रोजी एक 2 मिनिटं मीटिंग डिस्कनेक्ट करून कनेक्ट करतोय परत. हो.